گردوں کو بھرپور جواب۔ پاکستان نے پکتیکا ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی کارروائی میں 10 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، متعدد زخمی ہیں۔ دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر تباہ کیا گیا۔ طالبان کمانڈر اختر محمد بھی ان کارروائیوں میں مارا گیا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ سر بتائیے گا، پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ پاکستان نے پکتیکا ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانے کو نشانہ بنایا ہے۔ سر کیا کہیں گے آپ اس پر؟ میں یہ سمجھتا ہوں کہ ہماری پاکستانی افواج، ہمارے سیکورٹی ادارے ملک پاکستان کے تحفظ کے لیے، ملک پاکستان کے امن و بقا کے لیے جو بھی اقدامات لے رہے ہیں وہ بالکل ٹھیک ہیں۔ افغانستان کو بارہا یہ بات کہی گئی ہے کہ بھئی یہ جو راستہ فراہم کیا جا رہا ہے دہشت گردوں کو پاکستان میں آنے کا اور فتنہ الخوارج جو حمل کرتے ہیں، پھر وہ نماز پڑھنے والوں پر دھماکہ کرتے ہیں، کبھی خودکش حملے کرتے ہیں، کبھی سیدھی گولیاں مارتے ہیں۔ کیا یہ اسلام کی تعلیمات ہیں؟ قرآن تو کہتا ہے من قتل نفسا بغیر نفس او فساد فی الارض فکأنما قتل الناس جمیعا، جس نے ایک انسان کا قتل کیا اس نے پوری انسانیت کا قتل کیا۔ تو یہ کون لوگ ہیں؟ یہ درندہ صفت لوگ ہیں۔ اور پاکستان اپنا تحفظ کرنا جانتا ہے۔ اس نے مئی کے مہینے میں بھی ایک بہت بڑی جو اپنے آپ کو طاقت سمجھتا تھا ملک، اور جو اپنے آپ کو بہت زیادہ غرور اور تکبر اپنے اندر سمجھتا تھا، اس کو بھی اللہ کے فضل و کرم سے ڈھیر دیا۔ تو پاکستان کسی بھی طرح اپنے ملک کے اوپر کوئی ایسا کمپرومائز نہیں کر سکتا۔ یقیناً ہمیں سب سے پہلے پاکستان عزیز ہے، پاکستان کے لوگ اور پاکستان کا دفاع عزیز ہے۔ اسی لیے پاکستان کی افواج نے جو اقدام کیا یا حملہ کیا اور ان دہشت گردوں کو ختم کیا جو پاکستان کے آ کر کارروائیاں کر پاکستان کو نقصان پہنچانے کی سازش کر رہے تھے۔ بالکل، چیئرمین رویت ہلال کمیٹی مولانا عبدالخبیر آزاد صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے۔ آپ کے وقت کا شکریہ۔ پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ پاکستان نے پکتیکا ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا۔ ساتھ ہی سیکیورٹی ذرائع کے مطابق پاک فضائیہ کی کارروائی میں 10 سے زائد افراد ہلاک ہوئے، متعدد زخمی ہوئے ہیں۔ دہشت گردوں کا انفراسٹرکچر بھی تباہ ہوا ہے۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود ہیں بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب۔ سب سے پہلے شکریہ حارث صاحب کہ آپ نے نیوز 1 کو وقت دیا۔ سر، پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ؟ پاکستان نے بہت ریسٹرین شو کیا، پوری ہم نے ہمسایہ ہونے کا حق ادا کیا، ان کو بہت سمجھایا، لیکن دے کراس آل لمٹ۔ اور پاکستان کی سیکورٹی فورسز کی ذمہ داری ہے کہ اپنے عوام کی جان و مال کی حفاظت کرنا۔ ہمارے پاس ان کی تمام انفارمیشن ہے اکراس دا بارڈر کہ ان کے کمانڈرز کہاں پر ہیں، انڈینز کہاں پر بیٹھ کے ان کو ٹرین کر رہے ہیں، ان کو ٹارگیٹ ایکٹیویٹی کر رہے ہیں۔ آئی ایم شیور دے مسٹ ہیو گون فار آل دیز کازز۔ طالبان حکومت دوحہ معاہدے کے تحت اپنی ذمہ داریاں نبھائے گی۔ پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب۔ اسی پر بات کرنے کے لیے ہمارے ساتھ موجود تھے بریگیڈیئر ریٹائرڈ حارث نواز صاحب، آپ کے وقت کا شکریہ۔ پاکستان نے افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا ہے۔ پاکستان نے پکتیکا ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بھی بنایا ہے۔ بریگیڈیئر ریٹائرڈ مسعود احمد خان صاحب بھی ساتھ موجود ہیں، ان سے بھی اس پر بات کریں گے۔ مسعود احمد خان صاحب، سر ایک بڑا اقدام کیا گیا، پاکستان کا افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا گیا ہے، کیا کہیں گے اس پر آپ سر؟ رابطہ منقطع ہو گیا ہے، رابطہ بحال کرنے کی کوشش کریں گے۔ پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کو بھرپور جواب دیا گیا ہے۔ پاکستان نے پکتیکا ننگرہار میں دہشت گردوں کے ٹھکانوں کو نشانہ بنایا ہے۔ زاہد محمود صاحب بریگیڈیئر ریٹائرڈ ہیں، سر بہت شکریہ، آپ نے نیوز 1 کو وقت دیا۔ ایک اہم اقدام کیا گیا، بھرپور جواب دیا گیا ہے پاکستان کی جانب سے افغانستان میں دہشت گردوں کو، کیا کہیں گے سر اس کامیابی پر اور اس جواب پر آپ؟ پاکستان نے یہ انڈائریکٹلی بھارت کو بھی میسج دیا، اور اگر بھارت اسی پالیسی کو کنٹینیو رکھے گا تو بھارت کو بھی ڈائریکٹلی انڈائریکٹلی کسی نہ کسی ڈومین میں یہ کاسٹ پے کرنی پڑے گی۔ دے ول ناٹ بی لیفٹ ان اٹینڈڈ، سمجھ لیں کہ پاکستان کی ان کے اوپر توجہ نہیں ہوگی۔ پاکستان ول کریٹ کاسٹ۔ پاکستان جس طریقے سے اگر یہ رسپانس گیا پاکستان کی طرف سے، تو دس از دی ریپرزینٹیشن اینڈ ڈیمانسٹریشن آف دا ول آف دا پیپل آف پاکستان تھرو دیئر آرمڈ فورسز۔
बहुत शुक्रिया जनरल रिटायर्ड ज़ाहिर महमूद साहब हमारे साथ मौजूद थे। और जैसा कि पहले भी बताया कि पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में दहशतगर्दों को भरपूर जवाब दिया है। अफगानिस्तान तालिबान की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात और साथी नशरियात ने यह बताया है कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और उनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की हैं। तालिबान की जानिब से की जाने वाली दहशतगर्दी के जवाब में पाकिस्तान ने अफगानिस्तान में मुख्तलिफ मकामात पर दहशतगर्दों के 7 ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात और नशरियात ने बताया कि पाकिस्तान में हालिया खुदकुश हमलों में अफगानिस्तान में मौजूद दहशतगर्द क़यादत और इनके सहूलतकार मुलव्विस हैं। दहशतगर्दों ने हाल ही में इस्लामाबाद की इमाम बारगाह, बाजोड़ और बन्नू में कार्रवाइयाँ की। वजारत इत्तलात और नशरियात की जानिब से जारी बयान में कहा गया कि इन हमलों की जिम्मेदारी अफगानिस्तान में मौजूद पाकिस्तानी तालिबान, फितनातुल खवारिज और इसके इत्तेहादियों ने कबूल की है। पाकिस्तान के पास इसके ठोस शवाहिद मौजूद हैं कि ये दहशतगर्द कार्रवाइयाँ अफगानिस्तान में मौजूद क़यादत की हिदायत पर की गयीं। वजारत के मुताबिक पाकिस्तान ने मुतअद्दिद बार अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी सरजमीन दहशतगर्द तंजीमों और प्रॉक्सी के अनासिर के इस्तेमाल से रोकने के लिए काबिल तस्दीक इकदाम करे। ताहम अफगान अबूरी हुकूमत इस सिलसिले में मौसर कार्रवाई करने में नाकाम रही। मजीद कहा गया कि पाकिस्तान ने अपने शहरियों की हिफाजत को यकीनी बनाने के लिए जवाबी कार्रवाई करते हुए इंटेलिजेंस मालूमात की बुनियाद पर दहशतगर्दों के 7 कैंप्स और ठिकानों को निशाना बनाया। वजारत इत्तलात के मुताबिक पाकिस्तान खित्ते में अमन व इस्तेहकाम का ख्वाहां है, ताहम पाकिस्तानी अवाम की सलामती अव्वलीन तरजीह है। पाकिस्तान ने अफगान अबूरी हुकूमत पर जोर दिया कि वो अपनी जिम्मेदारियां पूरी करे और अपनी सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल होने से रोके। बयान में आलमी बरादरी से भी मुतालबा किया गया कि वो अफगान तालिबान हुकूमत पर जोर दे कि वो दोहा मुआहदे के तहत अपनी जिम्मेदारियों पर अमल करे ताकि खित्ते और दुनिया में अमन व सलामती को यकीनी बनाया जा सके। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा ISPR का कहना है कि अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से क़ता नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेंगे। ISPR के मुताबिक तालिबान हुकूमत अफगान सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल से रोकने में मुकम्मल तौर पर नाकाम नज़र आ रही है। पाक फौज के शोबे ताल्लुकात आमा का ये भी कहना है कि पाकिस्तान अब दहशतगर्दों के खिलाफ उनकी मौजूदगी के मकाम से क़ता नज़र बिला रियायत कार्रवाइयाँ करेगा। गुज़िश्ता रोज़ बन्नू में सिक्योरिटी फोर्सेस पर होने वाले हमले के ताने बाने भी अफगानिस्तान के गुल बहादुर ग्रुप से मिले थे। साथ ही ISPR के मुताबिक सिक्योरिटी फोर्सेस की बर वक्त कार्रवाई से बन्नू बड़े सानिये से बच गया है। दहशतगर्दों के बन्नू शहर में मासूम शहरियों और अहलकारों को निशाना बनाने के नापाक अज़ाइम नाकाम बना दिए गए। शोबे ताल्लुकात आमा का ये कहना है कि फोर्सेस ने ऑपरेशन के दौरान खवारिज का सुराग लगाया है। गाड़ी में सवार खुदकुश हमलावर को अगले दस्ते ने बर वक्त रोक लिया। खवारिज ने मायूसी में बारूद से भरी गाड़ी अगले दस्ते के एक गाड़ी से टकराई है। साथ ही हमले में लेफ्टिनेंट कर्नल शहजादा गुलफराज और सिपाही करामत शाह शहीद हुए, जबकि सिक्योरिटी फोर्सेस के ऑपरेशन में 5 खवारिज मारे गए हैं। आगे बढ़े और आपको बताएं कि CTD ने डेरा इस्माइल खान में दहशतगर्दी का बड़ा मंसूबा नाकाम बनाया। शेख यूसुफ खैमा बस्ती से एक मुबैना खातून खुदकुश हमलावर को रंगे हाथों गिरफ्तार कर लिया गया है। दौरान तफ्तीश गिरफ्तार खातून का एतराफ़ी बयान सामने आया। खातून ने इंकशाफ किया कि उसे खुदकुश हमले के लिए सामान और हदफ खारजी कमांडर आसिम की जानिब से फराहम किया जाना था। CTD हुक्काम के मुताबिक गिरफ्तार खातून की शनाख्त कर ली गई है। साथ ही खातून वजीरिस्तान की रिहायशी बताई जाती है। मुबैना खुदकुश हमलावर कम उम्र है जो खारजी शाहवली और तारिक कूची की दस्ते रास्त रही है और उसी से तरबियत भी हासिल करती रही। साथ ही गिरफ्तार खातून ने इब्तदाई तफ्तीश के दौरान एतराफ़ी बयान भी दिया कि खुदकुश हमले के लिए सामान और हदफ खारजी कमांडर आसिम की जानिब से फराहम किया जाना था। कार्रवाई के दौरान मुलजिमा के कब्जे से 30 बोर पिस्तौल, बमा कारतूस, मुतादिद मोबाइल फोन, टैबलेट और हमले में इस्तेमाल होने वाला सामान बरामद कर लिया गया है। CTD के मुताबिक गिरफ्तार खातून के मोबाइल फ़ोन से कलदम तंजीम से राबतों और खुदकुश हमले के लिए रजामंदी से मुतालिका मालूमात हासिल हुई हैं।
आपको बताएं कि CTD बन्नू की तफ्तीशी टीम पर दहशतगर्दों का हमला नाकाम बना दिया गया। फायरिंग के तबादले में एक दहशतगर्द हलाक, मुतादिद जख्मी हुए। हलाक कमांडर नई दहशतगर्द तंजीम इत्तेहादुल मुजाहिदीन पाकिस्तान का मास्टरमाइंड था। साथ ही तर्जुमान CTD के मुताबिक गिरफ्तार होने वाले इंतहाई मतलूब दहशतगर्द कमांडर उसामा उर्फ दानियाल असिस्टेंट कमिश्नर मेरान शाह पर हमले के मुकदमे में नामजद था। मुलजिम को शवाहिद की तकमील और वकुआ की निशानदही के लिए जगह पर ले जाया जा रहा था कि रास्ते में उसके साथियों ने तफ्तीशी टीम पर फायरिंग कर दी और ज़ेर हिरासत दहशतगर्द कमांडर उसामा अपने ही साथियों की फायरिंग से हलाक हो गया। वफाकी दारुल हुकूमत इस्लामाबाद, रावलपिंडी, अटक, चकवाल, मरी और जहलम में सर्च एंड कॉम्बिंग कार्रवाइयाँ। 7 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार कर लिए गए। इस्लामाबाद के इलाके खन्ना और गिरदोनवा, रावलपिंडी के बैंक कॉलोनी, कृष्ण कॉलोनी, तरबियाल कॉलोनी, अहमदीन चौक और जोरियान स्टॉप, मरी के जनरल बस स्टैंड और अली अड्डा, जबकि जिला जहलम के मशीन मोहल्ला, मोहम्मदी चौक, कराची होटल, लैला रोड समेत मुतादिद इलाकों में बैक वक्त सर्च ऑपरेशन किया गया है। ऑपरेशन में मजमूई तौर पर 422 पुलिस एहलकार, 32 लेडी पुलिस, 69 रेंजर्स एहलकार, 12 SHOs, 6 एलिट पुलिस सेक्शंस, 8 CTD एहलकारों ने हिस्सा लिया। इस दौरान रावलपिंडी और जालम से 2 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। साथ ही चकवाल में 7 अदालती मफरूर और 2 इश्तिहारी मुलजिमान गिरफ्तार किए गए हैं। मरी में कार्रवाई के दौरान 3 गैर कानूनी अफगान शहरी गिरफ्तार किए गए। साथ ही पाकिस्तान में क़याम सिर्फ कानूनी बुनियादों पर गैर रजिस्टर्ड अफगान शहरियों के खिलाफ कार्रवाई बिला इम्तियाज जारी रहेगी। वफाकी वज़ीर पार्लिमानी उमूर तारिक फजल चौधरी ने कहा है कि अफगानिस्तान में बरवक्त और मौसर कार्रवाई मासूम जानों का बदला है। अफगानिस्तान में मौजूद फितनतुल खवारिज के ठिकानों को पाक फ़ज़ाइया के शाहीनों ने कामयाबी से निशाना बनाया। पाकिस्तान के खिलाफ साजिशों का जाल बुनने वालों को एक बार फिर वाज़ेह पैगाम मिल चुका है। ये सरजमीन कमज़ोर नहीं, ये शोहदा के लहू से मजबूत हुई है। साथ ही एक्स पर अपने पैगाम में कहा कि अफगानिस्तान में भारतीय सरपरस्ती में पलने वाले फितनतुल खवारिज के ठिकानों पर पाक फ़ज़ाइया की बरवक्त और मौसर कार्रवाई दरअसल उन मासूम जानों का बदला है जो दहशतगर्दी की आग में झोंक दी गई। ये सिर्फ एक ऑपरेशन नहीं था, ये हर उस माँ के आंसुओं का जवाब था जिसने अपने बेटे को वतन पर कुर्बान किया। ये हर उस बच्चे के ख्वाबों का दिफा था जो एक महफूज पाकिस्तान चाहता था। जो भी पाकिस्तान को कमज़ोर समझने की गलती करेगा वो याद रखे, हम अमन के ख्वाह ज़रूर हैं मगर अपनी सरजमीन, अपने अवाम और अपने वक़ार पर कोई समझौता नहीं करते। मुल्क पाकिस्तान के एक एक इंच की हिफाजत को यकीनी बनाया जाएगा। रियासत पर उठने वाली हर मैली आंख को मिटा दिया जाएगा। ये वतन हमारी पहचान है, हमारी गैरत है, हमारा ईमान है। पाकिस्तान पहले भी था, पाकिस्तान आज भी है और पाकिस्तान हमेशा रहेगा। स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू जारी है। आपको बराह रास्त लिए चलते हैं। घर हो रहे हैं, सड़कों पे आ रहे हैं, वो हमारे वहमो गुमान से भी बाहर है। यहाँ अल्लाह ताला की मेहरबानी से भूखा कोई नहीं सोता। यूरोप में लोग भूखे सोते हैं, अमेरिका में लोग भूखे सोते हैं। हमारे मुल्क में अल्लाह ताला की मेहरबानी से कुछ हमारा मजहबी रुझान भी ऐसा है कि खाना लोग वाफर में बांटते हैं, भूखा कोई नहीं रहता। ये तो मैं वसूख से कह सकता हूँ, आप भी कह सकते हैं। और यहाँ जितनी खैरात ज़कात पाकिस्तानी देते हैं शायद दुनिया में कोई मुल्क या कोई कौम ना देती हो। इनके दिल में जो दर्द होता है एक दूसरे के लिए वो शायद कम ही मुल्क ममालिक में देखा गया है। तो इसलिए स्पीकर कौमी असम्बली सरदार अयाज सादिक की मीडिया से गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की। सदर मुमलिकत ने सेनेट का इजलास कल 2 बजे पार्लियामेंट हाउस में तलब कर लिया। सेनेट इजलास में मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल पर बहस की जाएगी। सेनेट इजलास में अहम कानून साजी भी मुतवक्के है। मजीद जानेंगे अहमद नवाज से। जी अहमद नवाज, बताइएगा क्या तफसीलात हैं आपके पास? जी बिल्कुल, सदर मुमलिकत आसिफ अली जरदारी ने सेनेट का इजलास तलब कर लिया है और सेनेट के इजलास में मुल्क में जो दहशत गर्दी के हवाले से अमन व अमान की सूरत हाल पर बहस कराई जाएगी और सेनेट के इजलास में जो अहम कानून साजी है और मुख्तलिफ कौमी इशूज़ हैं उनको भी एड्रेस किया जाएगा। और वाज़ेह है क्योंकि सेनेट के
जो पार्लिमानी साल है 12 मार्च से शुरू हो रहा है और पार्लिमानी साल के शुरू होने से पहले जो आईनी तौर पर रिक्वायर दिन होते हैं वो पूरे करने होते हैं और सेनेट के इजलास के लिए 9 दिन बाकी रहते हैं ताकि वो जो आईनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। तो यही वजह है कि सेनेट का इजलास तलब किया गया है ताकि वो जो आईनी रिक्वायरमेंट है उसको पूरा किया जाए। जी बहुत शुक्रिया। नुमाइंदा न्यूज़ वन इस्लामाबाद अहमद नवाज साथ मौजूद थे आपका। सीनियर वजीर सिंध शर्जील मेमन ने कहा है कि बानी पीटीआई की रिहाई उनके अपने हाथ में है। पीटीआई में आगे बढ़ने की दौड़ लगाई है। सोशल मीडिया पर इदारों को निशाना बनाया जा रहा है। अगर ये लोग अपने अल्फाज का चुनाव बेहतर करें तो मामलात में बेहतरी आएगी। कराची में यूनिवर्सिटी रोड पर रेड लाइन मंसूबे के दौरे पर मजीद कहा कि ईद से पहले रेड लाइन के अतराफ की सड़कें मुकम्मल कर ली गई। काम में ताखीर की वजह कोई बदनीयती नहीं बल्कि चैलेंजेस थे। अपने हाथ में है और रवैयों पर है। एक तो जो पीटीआई के अंदर मेरे ख्याल से जो वो सब अभी तक रेस में है कि जी कौन आगे जाए। जिस तरीके से सोशल मीडिया पे और बाहर दुनिया में बैठकर पीटीआई के हवारी जिस तरीके से इदारों को निशाना बनाते हैं और बदतमीजी में दुनिया के सारे रिकॉर्ड तोड़ देते हैं, इसको अगर बेहतर कर दे तो काफ़ी इंप्रूवमेंट आ जाएगी। ईद से पहले जो साइड वाली सड़कें हैं जहाँ पे लोगों को सब दुश्वारी हो रही है उनको कंप्लीट कर लिया जाए। पीपल्स चॉइस ईद से पहले ये सारा जो है आपको दोनों साइड जहाँ पे अभी नज़र आ रहा है कि जहाँ पे इस वक्त रोड टूटा हुआ है वो बेहतर हो जाएगा। बदनीयती या सुस्त रवि नहीं थी, सिर्फ वो चैलेंजेस थे जिसको उन चैलेंजेस को देखकर जो है उस पर फैसला करना था। चेयरमैन पीटीआई बैरिस्टर गौहर ने हलीमा खान के पार्टी चेयरमैनशिप मांगने या खुद चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिश के शेर अफजल मरवत के दावे की तरदीद कर दी है। कहा शेर अफजल मरवत की टीवी गुफ्तगू से मायूसी हुई। शेर अफजल मरवत से वादा लिया था कि वो मुतनाज़ा गुफ्तगू नहीं करेंगे। ये कोई तरीका नहीं कि कई चैलेंजेस पर बैठकर बैक वक्त किसी भी शख्सियत पर अटैक किया जाए। उन्होंने कहा कि कभी कभार जवाब नहीं भी देना होता। मैं वाज़ेह कर दूं कि हलीमा खान ने मुझे कभी चेयरमैनशिप से मुस्ताफ़ी होने के पैगाम नहीं भेजा। हलीमा खान ने कभी ऐसा तासुर या पैगाम नहीं दिया कि वो पार्टी चेयरपर्सन बनने की ख्वाहिशमंद हैं। हलीमा खानम ने चेयरपर्सनशिप के मामले में कभी मुदाखलत भी नहीं की। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ ने सीएम ग्रीन ट्रैक्टर प्रोग्राम फेज़ 3 का बाकायदा इफ्तिताह कर दिया। वज़ीर आला ने बज़ाते खुद कुरंदाजी में मुंतखब होने वाले किसानों को फ़ोन करके खुशखबरी सुनाई। मरियम नवाज शरीफ का कहना था कि ग्रीन ट्रैक्टर स्कीम से सूबे का ज़राई मंजरनामा तेज़ी से तब्दील हो रहा है। लाहौर से हमीद गोराइया की ये रिपोर्ट देखिए। तकरीब में सूबाई वज़ीर ज़राअत सैयद आशिक हुसैन किरमानी ने ब्रीफिंग में बताया कि तीसरे मरहले के लिए 4,27,005 एकड़ अराजी रखने वाले काश्तकारों ने दरख्वास्तें जमा करवाईं। प्रोग्राम के पहले 2 मराहिल में 21,000 ट्रैक्टर तकसीम किए जा चुके हैं, जबकि तीसरे मरहले में 50 से 65 हॉर्स पावर के मजीद 10,000 ट्रैक्टर दिए जाएंगे। ब्रीफिंग में मजीद बताया गया कि पंजाब में फी 10,000 एकड़ जमीन पर सिर्फ 140 ट्रैक्टर दस्तयाब हैं, जो आलमी तनासब के मुकाबले में 50% से भी कम है। इस स्कीम का मकसद किसानों की पैदावारी सलाहियत बढ़ाना और जदीद काश्तकारी को फरोग देना है। वज़ीर आला ने कहा कि आइंदा भी किसान दोस्त पॉलिसियों का सिलसिला जारी रखा जाएगा। तकरीब में बताया गया कि पंजाब में 20 साल में 20,000 ट्रैक्टर, जबकि 2 साल में पंजाब के काश्तकारों के लिए 31,000 ट्रैक्टर का रिकॉर्ड बन गया। हमीद गोराया, न्यूज़ वन, लाहौर। पंजाब सेफ सिटीज़ अथॉरिटी का अवामी फलाह और शफाफियत की जानिब एक और इनकलाबी इक़दाम सामने आया। सेफ सिटी की 15 हेल्पलाइन पर दर्ज शिकायत के लिए जदीद ऑनलाइन ट्रैकिंग सिस्टम मुतारिफ करवा दिया गया है। शहरी अब अपनी शिकायत की पेशरफ 24 घंटे ऑनलाइन मॉनिटर कर सकते हैं। FIR दर्ज होते ही डाउनलोड लिंक, कंप्लेन का टैग नंबर और तफसीलात बजरिया व्हाट्सएप पर अरसाल किए जाएंगे। शहरी घर बैठे अपनी FIR डाउनलोड करके तफसीलात की तस्दीक भी कर सकते हैं। दरख्वास्त गुजार को यूजर नेम और पासवर्ड बजरिया मैसेज फराहम किया जाएगा। शिकायत करनेंदा अपनी दरख्वास्त का स्टेटस चेक करने के साथ फीडबैक भी दे सकेगा। तर्जमान सेफ सिटी का कहना है कि वर्चुअल वीमेन पुलिस स्टेशन के जरिए खवातीन घर बैठे कानूनी रहनुमाई और फॉलो अप की सहूलत से फायदा उठा सकती हैं। सेफ सिटी की पोस्ट FIR और फॉलो अप सर्विस के तहत मुतासरा खवातीन से मुसलसल राब्ता बरकरार रखा जाएगा। मेलसी पुलिस की बड़ी कार्रवाई, मोटरसाइकिल चोर गैंग का सरगना गिरफ्तार कर लिया गया है। मुलजिम के कब्जे से लाखों रुपए मालियत की 12 मोटरसाइकिलें बरामद कर ली गई। साथ ही कार्रवाई
DPO विहाड़ी तस्वुर इकबाल की हिदायत पर अमल में लाई गई। इस वक्त हमारे नुमाइंदा शाहिद परदेसी DSP मेलसी चौधरी अहमद सयाल के हमरा मौजूद हैं, मजीद उनसे जानेंगे। जी शाहिद परदेसी, बताइएगा। के अंदर जहां DSP मेलसी और SHO थाना सदर ने जो है प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, जहां पर जो है मुतअद्दिद मुकदमात जो है ट्रेस किए गए हैं, जिसमें 12 मोटरसाइकिलें भी जो हैं वो जो ओरिजिनल हैं वो बरामद हुई हैं। हम इस वक्त DSP मेलसी साहब से बात कर लेते हैं कि उनका इन हवाले से क्या कहना है और कितने मुजरमान हैं जो उन्होंने गिरफ्तार किए हैं और कितने अभी बाकी हैं जो गिरफ्तार करने हैं और कितनी जो रिकवरी हुई है, ये बताइएगा। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जी आज की ये जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है थाना सदर मेलसी मोटरसाइकिल चोरी के हवाले से है। SHO सदर मेलसी और की टीम ने बड़ी एफर्ट के बाद ये गैंग गिरफ्तार की है और 12 मोटरसाइकिलें इसमें रिकवर्ड हैं। मुलजम अभी हमारे पास रिमांड पे है, इंशाल्लाह मजीद भी रिकवरी के चांसेस हैं। हमारी पूरी कोशिश है, हमारे DPO साहब बिहाड़ी का विजन है कि क्राइम फाइटिंग करनी है और अपने शहरियों के जानो माल का तहफ़्फ़ुज़ करना है। ये उनकी हदायत के ऐन मुताबिक इन्होंने दिन रात मेहनत करके इनको DPO साहब ने टास्क किया था कि यहाँ पे मोटरसाइकिल चोरी आपको पता है मेलसी में काफ़ी ज़्यादा हो रही थी, तो इसमें हमने थाना सिटी में भी गैंग गिरफ्तार किए। थाना सदर मेलसी में इन्होंने IT बेस्ड काम करके इन्होंने ये गैंग गिरफ्तार किया, जो कि साबिका रिकॉर्डेड भी है। मैं SHO सदर मेलसी और उनकी पूरी टीम को अप्रिशिएट करता हूँ कि उन्होंने बड़ी सख्त मेहनत के बाद ये गैंग गिरफ्तार किया। जी थैंक यू। और ये माल मसरूका मालिकान के हवाले कर दिया गया है। जी बिल्कुल, ये हमने अभी अपने जो साफी दोस्त हैं, हमारे शहरी हैं, इनके सामने मुद्दईयान को हमने इनकी चाबियां हवाले की हैं। हमारे लिए इससे ज़्यादा खुशी और इज़्ज़त की बात नहीं है कि हम लूटा हुआ माल अपने शहरियों को हवाले करें, रिकवर करके दें। जी बिल्कुल, जैसे कि आपने DSP की बात सुनी, उनका यही कहना था कि ये जो क्राइम फाइटिंग का जो सिलसिला है वो जारी है। बहुत शुक्रिया शाहिद परदेसी तफसीलात के लिए। वज़ीर इत्तलात पंजाब अज़मा बुखारी ने कहा कि मरियम नवाज़ ने रमज़ानुल मुबारक में मरियम के दस्तरखान के नाम से एक नया अवामी फलाही रुझान मुतारिफ कराया है, जिसके तहत पंजाब के कोने कोने में रोज़ादारों को इफ्तारी फराहम की जा रही है। आपको इस वक्त बता रहे हैं कि अज़मा बुखारी ने अपने बयान में ये भी कहा कि सूबे की हर तहसील में शहरी मरियम के मेहमान बनकर दस्तरखानों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं। अज़मा बुखारी ने अपने बयान में कहा कि सूबे की हर तहसील में शहरी मरियम के मेहमान बनकर दस्तरखानों से मुस्तफ़ीद हो रहे हैं और अवाम की जानिब से इस इक़दाम को भरपूर पजीराई मिल रही है, जहाँ मर्दों के साथ ख़वातीन की बड़ी तादाद भी शरीक हो रही है, जबकि सूबा भर में 74 सहूलत बाजार अवाम को सस्ती और मयारी अशिया खुर्दोनोश फराहम कर रहे हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब ने मजीद कहा कि ख़वातीन घर बैठे सहूलत बाजारों से ज़रूरी अशिया मंगवा रही हैं। रमज़ान ईक़बान पैकेज के तहत मुस्तहिक़ अफराद को इमदादी कार्ड फराहम किए जा रहे हैं और ज़िला इंतज़ामिया समेत मुतल्लिक़ा इदारों का अमला दिन रात अवामी खिदमत में मसरूफ़ है।